हेलो एंड वेलकम, मैं हूँ रिया और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस हेडलाइंस। शाहरुख खान अपने गुस्से की वजह से फिर फंसे मुश्किल में। टीवी का किंग बनने के लिए आमिर और अमिताभ में क्यों छिड़ी जंग। शाहिद क्यों बता रहे हैं अपनी किस्मत को खराब। करण प्रियंका चोपड़ा के झगड़े में आया नया मोड़। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से। शाहरुख खान फिर से फंस गए हैं एक बड़ी मुश्किल में, क्योंकि शाहरुख के खिलाफ पुलिस में दर्ज हुई है एक कंप्लेंट। आखिर शाहरुख के खिलाफ किसने दर्ज करवाई है कंप्लेंट, इन्वेस्टिगेट करेगी हमारी आज की टॉप स्टोरी। वानखेड़े स्टेडियम में शाहरुख खान पर एमसीए के ऑफिशियल से मिसबिहेव करने का इल्जाम लगने के बाद शाहरुख खान ने इस मामले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। सबसे पहले आपको ले चलते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और आपको दिखाते हैं शाहरुख का क्या कहना है। वो किसी को गालियां दे रहे हैं, ऐसा ऑडियो एमसीए ने Yeah, no, I will not deny the fact that I was abusive. It's not something, you don't need rocket science to know that. But it started when this gentleman from behind came and abused me in Marathi first. And then I told him, speak with me in Hindi. So he said something which was, I think in today's time and age in our country, it is something that should not be spoken. And that's when I told him, I said, this is my city, my country, don't speak to me like this. And I don't even want to repeat because it will get shades which are not right. And, he must have said it. And they were all very aggressive. All of them came down, 30 of them, physically charging like this. And I don't know, I'm not trying to behave like a macho guy here. But it's not nice when I've taken 30 children with me, little boys and girls, and 40 grown-up people come aggressively towards me. I will stand my ground. And I think it was completely correct on my part to stand there and let them know that they can't just physically push anyone out of there. There was nothing illegal. I was not on the pitch. I know the rules. We go in Kolkata, we play on other grounds. You're not allowed to go in the pitch after the match. And so we were not there. The pitches were covered. We were on the side. The kids were playing there. And I think the way that security gentleman came and pushed the little girls, I think that was completely wrong. And that's what I told him. And yes, then after that, once this gentleman abused me, yes, I did abuse. And I don't think, that's an anger. And they were being aggressive, so I became aggressive back. And when I hear them say what they're saying, I truly believe, with all due respect to, their spokespeople, I think they don't need to have this high-handed, holier-than-thou attitude about how I behave. I think they behave extremely, extremely irresponsibly. शाहरुख खान को ये सफाई देनी पड़ी है उन पर एमसीए के ऑफिशियल्स और सिक्योरिटी पर्सनल से मिसबिहेव करने का इल्जाम लगने के बाद। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अधिकारियों ने शाहरुख पर सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के साथ गाली गलौज करने और एमसीए ऑफिशियल्स को धमकाने के आरोप लगाए हैं। इन आरोपों में यहाँ तक कहा गया है कि किंग खान जब मैच खत्म होने के बाद वानखेड़े स्टेडियम में पहुंचे तो वो शराब के नशे में थे। रिपोर्टेडली इस इंसिडेंट के बाद शाहरुख खान को एमसीए ने हमेशा के लिए बैन कर दिया है। वहीं शाहरुख ने इस पूरे ड्रामे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शराब के नशे में होने की बात से साफ इनकार किया है। I've been hearing some of them say what they're saying, that I was under the influence of alcohol. I come from home. I don't drink except socially. I think it is only extremely fashionable sometimes that a celebrity gets into an argument. The first thing to say is that so and so was drunk. I wasn't. साथ ही ये भी कहा है कि वो माफी नहीं मांगेंगे, बल्कि माफी तो उनसे मांगी जानी चाहिए। No, I think they should apologize to me for behaving the way they behave. I don't think they're extremely high-handed. वैसे ये घटना उस वक्त हुई जब बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की टीम क्रिकेट के मैदान पर अपनी बादशाहत कायम करने की तरफ बढ़ रही थी। वेडनेसडे को हुए इस मैच में 2020 की कोलकाता टीम ने मुंबई की टीम को हरा दिया। इस मैच के दौरान तो किंग खान स्टेडियम में नहीं थे, पर मैच में अपनी टीम को जीत के दरवाजे पर देखकर किंग खान मेहमानों के साथ स्टेडियम में पहुंच गए। इसी दौरान वहां मौजूद सिक्योरिटी पर्सनल्स ने शाहरुख खान के साथ आए मेहमानों को मैदान में घुसने से रोका। किंग खान पर आरोप है कि इस बात से उन्होंने गुस्से में आकर न सिर्फ सिक्योरिटी पर्सनल से मिसबिहेव किया, बल्कि एमसीए ऑफिशियल्स को भी धमकाया। He abused MCA, he abused BCCI. He said I mean all that language. And then we decided to file a police complaint. Now we have filed a police complaint, and we have also decided in principle, we have spoken to our president, that he will be banned from entering Wankhede Stadium for his lifetime, along with his associates, Morani brothers or whosoever
they were with him. शाहरुख के इस रवैये से नाराज एमसीए ऑफिशियल्स ने मामले की शिकायत पुलिस में की। वैसे इस मामले में पुलिस के दखल के अलावा अब क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड भी एक्टिव हो गया है और राजीव शुक्ला ने कहा है कि वो दोनों पक्षों से बात करेंगे। मैं मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन से रिपोर्ट ले रहा हूँ, फिर मुझे फ्रेंचाइजी का भी वर्जन लेना पड़ेगा। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन और फ्रेंचाइजी दोनों का वर्जन लेने के बाद क्या स्थिति है और पुलिस का भी वर्जन आ जाएगा, इसके बाद मैं आपको इस पर बताऊंगा। वहीं दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। जहां एमसीए ने शाहरुख पर मिसबिहेव करने का इल्जाम लगाया है, वहीं शाहरुख लगा रहे हैं एमसीए ऑफिशियल्स पर मैनहैंडल करने का आरोप। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। इस वीक आमिर के टेलीविजन शो की रेटिंग आ चुकी है और अब सभी यही सवाल कर रहे हैं कि आखिर टेलीविजन का किंग है कौन। और अब ज़ूम लेकर आया है बॉलीवुड स्टार्स की टेलीविजन परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव स्टोरी में कौन सा स्टार हुआ पास और कौन सा हुआ फेल। टीवी का किंग बनने को लेकर बिग बी और आमिर खान में छिड़ी जंग। सदी के महानायक बिग बी और मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान के बीच हुई छोटे पर्दे का किंग बनने के लिए जोर आजमाइश, जो आमिर के शो की पहले हफ्ते की टीआरपी के बहाने दो अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में खुलकर सामने आ गई है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि टीवी के असली किंग अभी भी अमिताभ बच्चन ही है, जिनके नाम कौन बनेगा करोड़पति के 4 सक्सेसफुल सीजन्स और एक बार बिग बॉस होस्ट करने का शानदार रिकॉर्ड है। 2005 में आए केबीसी सीजन 2 के ओपनिंग एपिसोड को हाईएस्ट 19.75 व्यूअरशिप मिली थी। वहीं आमिर का शो 3 टीवीआर की ओपनिंग पर ठहर गया। इस बात को मुद्दा बनाकर अब आमिर के शो को दूसरे टेलीविजन डेब्यू करने वाले बॉलीवुड स्टार्स के शो से भी पीछे बताया जा रहा है और बिग बी को दे दिया गया है टीवी का किंग होने का ताज। वहीं एक दूसरे रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आमिर के शो को 9 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने देखा है। न सिर्फ इसे टेलीकास्ट करने वाले चैनल पर लोगों ने पसंद किया, बल्कि इस चैनल ग्रुप के और 8 अलग अलग चैनल्स पर भी आमिर का शो देखा गया। दूरदर्शन पर भी आमिर के शो को देश भर में देखा और सराहा गया है। इतनी बड़ी व्यूअरशिप के बाद ये शो खुद ब खुद एक ग्रैंड शो बन गया है। यानी एक तरफ है वो पैमाना जिससे अब तक टीवी पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों के असफल या सफल होने का पता लगाया जाता था, यानी कि टीआरपी रिपोर्ट्स, और दूसरी तरफ आमिर के शो की लो टीआरपी से ध्यान हटाकर ये बात गिनाई जा रही है कि आमिर का शो करीब 9 करोड़ लोगों तक पहुंचा। मीडिया में आई दोनों रिपोर्ट्स अपने अपने ढंग से आमिर और बिग बी को टीवी का किंग साबित करने में लगी हैं। रिकॉर्ड्स बिग बी को टीवी का किंग साबित करने के लिए तो काफी हैं, पर इस जंग में ठीक आमिर की हार के वक्त बिग बी को टीवी का बादशाह बताने के लिए सामने आई रिपोर्ट ने उनके दिल को चोट जरूर पहुंचाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। ज़ूम ने अभी हाल ही में आपको एक्सक्लूसिवली दिखाया था कि किस तरह शाहिद अपने करियर को लेकर है परेशान, और रिसेंटली के इवेंट पर ज़ूम की खबर पर मोहर लगाते हुए शाहिद ने किया इस न्यूज़ को कंफर्म। हैव अ लुक। हमने आपको कुछ दिन पहले ही ये बताया था कि किस तरह शाहिद का लक उन्हें फेवर नहीं कर रहा है और एक एक करके शाहिद के हाथों से फिल्में निकलती जा रही हैं। शायद अब शाहिद भी ज़ूम की बातों से सहमत हैं और इसलिए अपनी किस्मत को खराब बता रहे हैं। तो मुझे साल में 3 फिल्में करनी है, मेरी किस्मत ही खराब है। सुना आपने, शाहिद का मानना भी यही है। कुछ दिन पहले ही हमने शाहिद के करियर को जिंक्स बताया था और अब खुद शाहिद ही इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत ही खराब है। और वो अपनी किस्मत को क्यों खराब बता रहे हैं, ये भी सुन लीजिए। It's so strange that I haven't been on a set. I was supposed to start shooting in February, right after I finished Teri Meri Kahani for the film that now is going to start in July. That's the film with Manish Sharma, which Yash Raj is producing. And unfortunately, he fell ill, and we're shooting most of the film in Jaipur. And now it's too hot to shoot out there, so we have to wait till the temperatures cool down a little bit to shoot there. यही वजह है कि शाहिद फिल्म मेकर्स को बता रहे हैं कि उनके पास कुछ ज्यादा ही फ्री टाइम है और वो अपने आप को फिल्म के सेट्स पर बिजी रखना चाहते हैं। I'm very keen to be on set because जैसा आपने कहा, I have had a lot of free time and I've spent a lot of time not being on set and realized that मुझे सबसे ज़्यादा खुशी सेट पर ही मिलती है। So I'm really looking forward to doing a lot of films and I'm going to have a couple of busy years now. ये तो थी आपके प्रोफेशनल लाइफ की बात। अब कुछ अपने पर्सनल लाइफ के बारे में भी बता दीजिए। प्रियंका आपके साथ है, रियल लाइफ में कौन है आपके साथ?
कौन क्या है? रियल लाइफ में आपके साथ आपकी कहानी कौन है? आपको लगता है इस सवाल का जवाब मैं दूंगा? कई साल से लोग कोशिश कर रहे हैं, पर आपको लगता है मैं आपको दूंगा इसका जवाब? लगता है शायद फिल्म्स के साथ साथ आपकी पर्सनल लाइफ में भी किस्मत खराब है। कोई नहीं, अब जब आप अपनी फिल्म तेरी मेरी कहानी को प्रमोट करने आई ही हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ बातें भी बता दीजिए। वी हैव हर्ड शाहिद कि आपकी को स्टार और गुड फ्रेंड रह चुकी प्रियंका चोपड़ा एक अच्छी पोएट भी है। उनके बारे में आपका क्या कहना है? आज तक उन्होंने मुझे सुनाई नहीं है कोई भी पोएट्री। आपको सुनाई है शायद? That's quite weird, शाहिद। आप इतने क्लोज फ्रेंड हैं प्रियंका के और उन्होंने आपको कभी पोएट्री नहीं सुनाई। फॉर कीर्ति तरंग, जूम, मुंबई। बॉलीवुड स्टार्स के बीच इवेंट्स पर लेट पहुंचने का जैसे ट्रेंड सा चल पड़ा है। पहले शाहरुख और सलमान जैसे स्टार्स ही ऐसे टैंट्रम शो करते थे और अब बिपाशा भी शामिल हो गई है इन लेट कमर्स की लिस्ट में। हैव अ लुक। नहीं, मेरे अलावा और कोई क्रेजी है ही नहीं। बॉलीवुड बहुत सॉर्टेड है, मैं ही क्रेजी हूँ। सुना आपने, बंगाली बॉम्बशेल बिपाशा खुद को मानती हैं बॉलीवुड की सबसे क्रेजी लेडी। नहीं, मेरे अलावा और कोई क्रेजी है ही नहीं। बॉलीवुड बहुत सॉर्टेड है, मैं ही क्रेजी हूँ। और रिसेंटली बिपाशा का ये क्रेजी अंदाज नजर आया एक स्टोर लॉन्च पर, जहां बिपाशा दिखी काफी हैप्पी। लेकिन बिपाशा को देख यहाँ मीडिया पर्सन्स कुछ ज्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि बिपाशा इस इवेंट पर पहुंची थी पूरे 3 घंटे लेट और अपनी इस गलती के लिए इस बोंग बाला ने मीडिया से माफी तक नहीं मांगी। स्टारी एटीट्यूड वे से। वैसे बिपाशा ने यहाँ कोई क्रेजी हरकत तो नहीं की, लेकिन अपने बॉलीवुड फ्रेंड्स को एक सलाह जरूर दी कि उन्हें अपने सेफ जोन से बाहर निकलकर कुछ क्रेजी करना चाहिए। Step out of your safety circles and come and visit Vinegar। नहीं, मेरी खास दोस्त में आप नहीं पहचानते उन लोगों को। नहीं, बॉलीवुड में क्यों? मेरे क्या और दोस्त नहीं है क्या? बहुत दोस्त है, मैं सब बॉलीवुड, हॉलीवुड, घर, स्कूल, सबके सारे दोस्त लेके आऊंगी। वेल, बिपाशा की ये सलाह किन बॉलीवुड लेडीज के लिए थी ये तो बिप्स ने हमें नहीं बताया, लेकिन खुद को वो फिर से क्रेजीएस्ट बताना नहीं भूली। पहले हम लोग बहुत झिझकते थे, to accept a lot of adjectives. Like when I started acting, people started calling me sexy, and people used to think it's a very confused term. Today, people all want to be sexy. So now, I think the next good adjective to accept is crazy. So I'm very happily, proudly say that, I was born a crazy girl and I'm still a crazy girl and very proud to be a crazy girl. बिपाशा, आप कितनी क्रेजी हैं ये तो सबको पता है, पर बार बार इस बात को रिपीट करने की क्या जरूरत है? वैसे बिपाशा से जब हमने पूछा कि काफी सारी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस अपनी डीवीडी के साथ कंपटीशन देने जा रही हैं, तो सुनिए कैसे बिपाशा ने दिया ये तीखा जवाब। दूसरे क्या काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसमें मैं ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखती। वेल, बिपाशा, दूसरे के वर्क में इंटरेस्ट न रखना तो अच्छी बात है, लेकिन दूसरों के टाइम का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। इस बात का जरा ध्यान रखिएगा और अपनी इवेंट्स पर टाइम से पहुंचने की कोशिश कीजिएगा। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। करण जौहर और प्रियंका चोपड़ा की लंबे समय से चल रही लड़ाई में आ गया है एक नया मोड़। करण ने फिर से प्रियंका पर किया है एक वार। क्या है करण का ये लेटेस्ट वार, बताएंगी हमारी खास रिपोर्ट। करण और प्रियंका खुलकर पब्लिकली अपनी दुश्मनी का कर रहे हैं इजहार, पर लगता है करण ने प्रियंका से झगड़े की चैलेंज को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है। तभी तो हर दूसरे दिन करण कुछ ऐसा कर रहे हैं कि इस झगड़े की आग ठंडी नहीं पड़ रही है। करण जौहर बहुत जल्दी मनाने जा रहे हैं अपना 40th बर्थडे और करण के इस बर्थडे पर पूरा बॉलीवुड इंक्लूडिंग तीनों खान्स आ रहे हैं एक साथ। लेकिन इतने बड़े बर्थडे बैश से प्रियंका रहेंगी दूर। सोर्सेज की माने तो करण ने अपने स्टाफ को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि गेस्ट लिस्ट में गलती से भी प्रियंका का नाम ना आ जाए। वेल करण, ऐसी भी नाराजगी क्या? आप तो प्रियंका चोपड़ा के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। वैसे करण को बॉलीवुड में कूल एंड काम पर्सन माना जाता है और प्रियंका से अपनी दुश्मनी की न्यूज को भी करण अंडर रैप्स ही रखना चाहते थे। लेकिन जब एक इंग्लिश डेली में प्रियंका की एक खास फ्रेंड ने करण और उनके फ्रेंड्स के खिलाफ एक न्यूज पब्लिश करवाई, तब से करण ने प्रियंका के खिलाफ अग्निपथ पर चलने का फैसला ले लिया। पहले करण ने एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर अपने गुस्से का इजहार किया और फिर प्रियंका से अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म करके उन्हें ये एहसास दिलवा दिया कि ये लड़ाई अब करण के ईगो का सवाल है। वेल, बॉलीवुड में खान्स फाइट के बाद अगर किसी झगड़े को इतनी ज्यादा लाइमलाइट मिल रही है तो वो करण और प्रियंका के बीच चल रही तू मैं ही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि करण के एक के बाद एक हो रहे वार का प्रियंका कैसे जवाब देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई।
जहां बॉलीवुड एक्ट्रेसेस अपनी लव लाइफ को सीक्रेट रखना चाहते हैं, विद्या बालन मीडिया के सामने खुद ही छेड़ रही है अपने लव लाइफ के तार। बिना पूछे सबको बता रही है कि वो कितना रोमांटिक फील कर रही है। तो कहां फील किया विद्या ने इतना रोमांटिक, लेट्स फाइंड आउट। विद्या बालन अपनी पिछली फिल्म कहानी के डीवीडी लॉन्च पर पहुंची तो उन्होंने बिना पूछे ही शुरू कर दी अपने प्यार की कहानी। इन दिनों दिल मेरा मुझसे ये कह रहा। लव लाइफ की बात बॉलीवुड की हर एक्ट्रेस छिपाती आई है, पर विद्या है कि अपनी पर्सनल लाइफ की मार्केटिंग में भी लगता है माहिर हो गई हैं। तभी तो देखिए, मीडिया ने उनसे सिर्फ पूछा था हालचाल, पर बहकी बहकी सी विद्या बताने लगी अपने रोमांटिक दिल का हाल। इन दिनों दिल मेरा मुझसे ये कह रहा। उसके आगे विद्या भले ही इसके आगे ना बताएं, पर मीडिया के लिए उनका ये इशारा काफी था। Were you holidaying in Goa as media reports stated? Was I holidaying in Goa? Yeah, according to media reports. No, for a month, no. Well, लगता है विद्या का ये इशारा रियल लाइफ नहीं बल्कि रियल लाइफ रोमांस के लिए था। On screen. तभी तो रियल की बात आते ही देखिए कैसे सीरियस हो गई विद्या। पर बात जब उनके रियल लाइफ एसआरके से हटकर रियल लाइफ एसआरके से रोमांस की आई तो देखिए कैसे विद्या दोबारा एक्सप्रेसिव हो गई। I think I grew up watching, all his films where he played the ultimate romantic hero. I think when you think of romance, there are just two names that you think of: Rajesh Khanna and Shah Rukh Khan. The names that are foremost in my mind. So, yeah, I think just that every woman wants a Raj, yeah. यहाँ तक कि जब उनसे पूछा गया कि शाहरुख और विद्या में से कौन हो सकता है वेस्ट बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर, तो विद्या ने अपने लिए भी ऑप्शन खुला रखा और एसआरके के लिए भी। No, I think they can have a male and a female brand ambassador and they can still appoint me. ओह विद्या, ये एक स्टेट की ब्रांड एम्बेसडरशिप का सवाल है, कोई यशराज की फिल्म नहीं जिसमें मेल और फीमेल दोनों लीड होंगे। वैसे सुनने में तो ये भी आया है कि यशराज आपकी कहानी को रीमेक करने जा रहा है, तो इस पर क्या कुछ कहना नहीं चाहेंगी आप? I really don't know how to react to that because I'm unaware. So please, Backing both of you. Sorry. I'm genuinely. Apparently, YRS is planning to get the rights and remake Kahani in English. I'm not really allowed to talk about that, but there are talks in terms of not just several people, and if it happens, great. If it doesn't, it didn't. पर अगर कहानी का ये इंग्लिश रीमेक बनता है तो विद्या बालन चाहती है कि जॉर्ज क्लूनी कहानी के ऑफिशियल रीमेक में सीरियल किलर का रोल करें। I just want to say that Bob Bishash is going to be played by George Clooney. लेकिन जब विद्या से पूछा गया कि उनके पिछले साल की सबसे बड़ी हिट द डर्टी पिक्चर के बांग्ला और तमिल रीमेक्स में से किस पर है उनकी नजर, तो जरा देखिए विद्या का एक्साइटमेंट लेवल इस खबर के लिए। Okay. No, I didn't know that. I've seen Rakhi Sawant a lot, so I think she's a lot of masti. I'm waiting to see what she does in the film. राखी को विद्या से मिल गई है तारीफ, वहीं बीना को विद्या ने कर दिया इग्नोर। पर क्या वाकई द डर्टी पिक्चर के बांग्ला रीमेक में राखी विद्या की तरह कमाल कर पाएंगी, ये देखना अभी भी बाकी है। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास, सो स्टे विद अस। इट्स टाइम टू शो यू स्पेशल रिपोर्ट। ये लेटर लिखा है बिग बी ने, लेकिन हम आपको बिग बी का लिखा हुआ ये लेटर इसलिए दिखा रहे हैं कि अमिताभ बच्चन ने ये लेटर लिखा है विकी डोनर के डायरेक्टर सुजीत सरकार को। दरअसल विकी डोनर बिग बी को इतनी ज्यादा पसंद आई कि उन्होंने सुजीत को फ्लावर्स के साथ साथ भेज दिया बधाई का ये लेटर। और इस बात का खुलासा जूम पर एक्सक्लूसिवली खुद सुजीत कर रहे हैं। I sent him a text. He said, "Are you watching? Have you watched the film?" So he said, "Yes, tonight I'm going to watch." And then he watched the film. सुजीत ये बताइए कि अमित जी ने ये मूवी अकेली देखी या फिर विद फैमिली? That I think he watched it in his house. I think he normally sees this film in his house.
So, but he's quite excited. वेल अमिताभ को मूवी कितनी पसंद आई इसका आइडिया तो हमें इस ग्रैंड जेस्चर से लग ही रहा है। एंड शुजीत के लिए ये अप्रिसिएशन कितना इम्पोर्टेंट है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि शुजीत सरकार ने ये लेटर फ्रेम करवाकर डेस्क पर रखा है। फॉर कीर्ति तरंग, जूम, मुंबई। With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.